Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about some other important topics from Political Science Paper 2 and Constitutional Law. So, as we have done some important topics in our previous lectures, in first lecture we talked about the salient features of the Constitution of UK, and then we talked about the sovereignty of Parliament and some other important topics, conventions, laws, and the difference between conventions and laws. So in today's class we are going to talk about monarchy. Most of the students don't know about monarchy, particularly the monarchy of England and the monarchical system, and how does it work in UK. They don't know. Another thing, many of the students, they don't know the cabinet, the functions of cabinet, and the powers of prime minister, and these topics also remained the part of past papers. A question was asked about the monarchy in previous papers, so it means that today's all topics are going to be the answers for all the previous papers as well. If there is a question on monarchy, king or queen, the life of king or queen, so you will be able to answer after listening the lecture. And the question on cabinet, that is highly important for your examination, both PMS and CSS, like cabinet, how does it work, the functions of cabinet, the dictatorship of cabinet, whether the cabinet is a virtual dictator or not, and one more topic which also remained the part of past papers is the functions and powers of prime minister. So in short, you are going to learn all about the cabinet system, all about the monarchy, all about the prime minister. The same things you can apply on your own country, Pakistan, because Pakistan is also a parliamentary form of government. It has its prime minister and it has its own cabinet as well. What does it mean? It means that with learning and ascertaining, comprehending the ideas of UK Constitution, you are also learning the part and the functions of your own prime minister, your own cabinet, and your own parliament. And that is why time and again I say that this the Constitution of UK is highly important, because this is the mother democracy, and if you consider it a mother parliamentary system that gave birth to many other constitutions, that statement would not be exaggeration and that would not be wrong, because you can see the system of India, the system of New Zealand, the system of Canada, the system of even Pakistan, right? They have acquired all these systems from the parliamentary form of from the system of UK. So with understanding this system, you understand most of the systems and constitutions of the world where parliamentary form of government is in vogue. So the first topic is that monarchy. Monarchy, remained the part of England
since the beginning of the government, first they installed, like Anglo-Saxon period, they installed kingship, right? So king was the authority, and that was the absolute authority. His words would be the law, right? And his commands would become the laws, the acts, and the people would have to accept what the king said at that time. Then comes another period after Norman conquest, and there was also a constitutional monarchy. There used to be a monarch with a body of people which used to be called curia regis, and they worked for the king. With the passage of time, the powers of monarchy reduced, and the monarch surrendered his or her power to the cabinet. Anyhow, that is our another topic, and we will discuss it later. But for now, our topic is monarchy. So what does it mean that for hundreds of years, monarchy remained the part of England, and still it is going on. मोनार्की इज़ हेरिडिटरी इन इंग्लैंड, ये हेरिडिटरी है, और इसमें एक जो प्रेमोजिनेचर का प्रिंसिपल है वो उसूल अभी तक आ रहा है। प्रेमोजिनेचर का मतलब क्या है? वो इसका मतलब है कि द एल्डर विल बिकम द किंग, कि जो सबसे बड़ा होगा, जैसे कि बाप है वो मर जाए तो सबसे बड़ा बेटा जो है फिर किंग बनेगा, ठीक है। क्वीन भी बन सकती है, और ये एक ख़ास ख़ानदान है, रॉयल्टी है, और एक ख़ास फैमिली है जो सदियों तक आ रही है, आज तक है। और आपकी किताब में लिखा भी है कि मज़हबी लिहाज से दे आर प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि चर्च मुख्तलिफ किस्म का है, कैथोलिक भी है, प्योरिटन भी है, और प्रोटेस्टेंट भी है। तो ये लोग जो है जिनका ताल्लुक शाही ख़ानदान से है वो प्रोटेस्टेंट है और आज तक आ रहे हैं। अब क्वेश्चन जो किया जाता है आप लोगों से पेपर में, एक क्वेश्चन तो ये किया जाएगा कि किंग और क्राउन, ये दो अल्फाज लोग सिनोनिमसली यूज़ करते हैं, मतलब एक जैसे यूज़ करते हैं, and they think that crown and king or queen, they have the same meaning. King is the crown and crown is the king, but there is a slight difference between them, ठीक है। king जो है that is a person, and crown that is an institution. king जो है वो तो एक आम इंसान है जो पैदा भी होता है, जीता भी है और मर भी जाता है। क्राउन ये एक इंस्टीट्यूशन है। अब ये तो कहीं नहीं जाएगा, इंस्टीट्यूशन तो मरता नहीं है, ठीक है, वो रहेगा। और इसीलिए इंग्लैंड में एक बात भी मशहूर है कि द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग, ठीक है। अब एक किंग जो इसने इस्तेमाल किया, द किंग इज डेड, इसका मतलब है कि एक इंसान जो है द किंग इज डेड, वो तो मर गया, ठीक है। अब दूसरा जो है लॉन्ग लिव द किंग। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो दूसरा किंग इस्तेमाल हुआ ये क्राउन के लिए इस्तेमाल हुआ कि जो मोनार्की है लॉन्ग लिव द किंग, बस वो दुआ है कि हमेशा चलती रहे, कोई जो है उसको नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो क्राउन और किंग में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि क्राउन जो है दैट इज एन इंस्टीट्यूशन। अब ये इस इंस्टीट्यूशन में क्या है, इस इंस्टीट्यूशन में हमारे पास होता है कि किंग और क्वीन, फिर इसमें हमारे पास प्रीवी काउंसिल भी होता है, इसमें हमारे पास प्रीवी काउंसिल पुराने ज़माने के जो किंग के लिए एडवाइजर्स होते थे उसको प्रीवी काउंसिल कहा जाता है, आज भी हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। आज हैं लेकिन बेचारे बरइनाम बैठे रहते हैं, बट दे आर नॉट इफेक्टिव, उसकी कोई अहमियत नहीं रही बाकी, ठीक है। बस कहीं अगर ताज पहनाने का दिन आ जाए तो ये सारे प्रीवी काउंसिल के मेंबर्स आ जाते हैं और उसमें शमूलियत कर देते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट इफेक्टिव।
and active as well. Anyhow, king, privy council, कैबिनेट भी, और किसी हद तक टू सम एक्सटेंट उसमें पार्लियामेंट भी आ जाता है. अब ये क्राउन इंस्टीट्यूशन है, इसमें हमारे पास किंग है, प्रीवी काउंसिल के मेंबर्स हैं, इस वक्त तकरीबन 337 के करीब मेंबर्स हैं, लेकिन दे आर डेड बॉडीज. ठीक है, आप पेपर में डेड बॉडीज ना लिखे, लेकिन ये लिखे कि दे हैव लॉस्ट देयर इफेक्टिवनेस. उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो ख़त्म हो चुकी है. कई साल में अगर कोरोनेशन वगैरह हो, मतलब ताज पहनाने का दिन हो, तो फिर ये लोग आ जाते हैं, अदरवाइज और वो भी कभी कभार. और कैबिनेट अहम है, वो भी इसी क्राउन का हिस्सा है. और किसी हद तक पार्लियामेंट भी, पार्लियामेंट हिस्सा नहीं है बट किसी हद तक, ठीक है, टू सम एक्सटेंट. अब ये तो आपके पास जो है क्राउन की जो मैंने एक्सप्लेनेशन देनी थी वो तो दे दी कि क्राउन है क्या चीज़, इसमें होता कौन है, और ये किंग से किस तरह डिफरेंशिएट करता है. अब आते हैं द पावर्स ऑफ क्राउन, देखते हैं कि जो हमारे पास क्राउन होता है इसके पावर्स क्या है. अब थोड़ा सा इस टॉपिक को समझने के लिए एक चीज़ बताता हूँ, फिर जो है जब आप किताब पढ़ोगे so you will definitely feel at ease and there will be no problem in understanding the concept. There is a difference between theory and practice. ये लिखें that there is a difference between theory and practice. अब theory जो है, एक उसके पास मैं कह दूं कि बस हजारों जो है पावर्स हैं, but in practice he cannot exercise it. वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता. इसके लिए खूबसूरत मिसाल देता हूँ थ्योरी एंड प्रैक्टिस को समझने के लिए. बुक में नहीं है तो, और ये थ्योरी एंड प्रैक्टिस इसलिए भी समझा रहा हूँ कि ये आपको जो है सिर्फ यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, बल्कि पूरे किताब में ये अप्लाई होगा. अब आते हैं, मिसाल ले ले, अगर आप बैंक में काम करते हैं और आपके सामने हज़ारों करोड़ों और पता नहीं बेतहाशा दौलत है, सामने नोट और करेंसी और डिफरेंट करेंसीज हैं, डॉलर्स पड़े हुए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, आप गिनते भी हैं, रिकॉर्ड भी रखते हैं, तो लेकिन ये आपके सामने पड़े हुए हैं, लेकिन दैट इज़ ओनली अ पेपर फॉर यू. तुम्हारे लिए तो ये सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा है, बिकॉज यू कैन नॉट यूटिलाइज इट. अब आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकती, अब आप ये आपके है ही नहीं, बस आप सिर्फ गिनने वाली जो है एक मशीन है, या जो है इसको संभालने के लिए एक मशीन जो है बैंक ने रखा हुआ है तनख्वाह पर, ठीक है, और आपको बैंक यूटिलाइज करता है, यूज़ करता है, एक्सप्लॉइट करता है, ये पैसे आपके नहीं हैं. तो इसी तरह क्राउन के पास बेतहाशा इख्तियारात हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि एक किंग जो है या एक क्वीन जो है, उसको रिटन में कह ले या जो है कन्वेंशंस कह ले या कल्चरल कह ले, जो भी कह ले, उसके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं, लेकिन रियल में, प्रैक्टिस में वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है, ये अगर इस बात की समझ आ गई कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन theory and practice in England Constitution, तब आपको समझ आएगा. अब इवन पाकिस्तान में भी ये है, जो हमारा सदर साहब है, तो अगर आप जब कॉन्स्टिट्यूशन उठाते हैं तो सदर को तो बेतहाशा इख्तियारात दिए हैं, लेकिन असल में क्या है, असल में तमाम इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर के पास हैं, सदर के पास कुछ भी नहीं है. ये आरिफ अलवी साहब जो है, वो बेचारा तो टीवी पर आते हैं और लोगों को सिर्फ इतना बताते हैं कि हाउ टू ब्रश द टीथ, क्योंकि ये खुद डेंटिस्ट रह चुका है, तो लोगों को सिर्फ इतना, ये अब इसका फंक्शन रह गया है. बाकी अगर दौरे करने हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर करता है, फैसले करने हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर करता है, अपोजिशन को क्रिटिसाइज करना है वो भी प्राइम मिनिस्टर करता है, किसी को ओहदा देना है, किसी से ओहदा लेना है, किसी को लाना है, किसी को हटाना है, सारे के सारे फंक्शंस जो है ये प्राइम मिनिस्टर करता है. और जो सदर पाकिस्तान होता है, 18वीं तरमीम के बाद उसके पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ नॉमिनल हेड है, हेड ऑफ द स्टेट. ये बड़ा नाम, पूरे स्टेट का हेड है, लेकिन किस तरह हेड है, नॉमिनल हेड है.
बेचारे के पास आईनी तौर पर इख्तियारात है, लेकिन इन प्रैक्टिस फिर कुछ भी नहीं है। अब आते हैं इधर, इसके पास कौन कौन से इख्तियारात हैं, ये सारे थ्योरी में है। ये बात जहन में रख के मैं बताता हूँ, आप लोग इस पर यकीन करें, लेकिन जहन में ये रखे कि इट इज़ ओनली थियोरेटिकल। प्रैक्टिस में तमाम के तमाम इख्तियारात कैबिनेट के पास है, तमाम के तमाम इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर के पास है, इंग्लैंड में भी। अच्छा, पावर्स ऑफ द क्राउन में ये है कि जुडिशियल इख्तियारात भी इसमें हैं। इवन अगर प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करना हो, ये लोग कर सकते हैं। ठीक है, कि अब इलेक्शन होता है, जीत जाता है, फिर जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, यही किंग कहता है कि फला शख्स जो है प्राइम मिनिस्टर होगा। ये इख्तियारात भी हैं, लेकिन अभी कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन ये है कि जो मेजॉरिटी पार्टी से हो बस वही होगा, और जो पार्टी उसको नॉमिनेट करे। ठीक है, जैसे इमरान खान को पार्टी ने कहा कि आप हमारे वज़ीर आज़म के लिए पार्टी ने नॉमिनेट किया नेशनल असम्बली में, फिर सदर साहब ने भी कहा कि आ जाएं बस आप ही प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सब इत्तेफाक से आपको जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है। तो इसी तरह इंग्लैंड में भी होता है। एग्जीक्यूटिव इख्तियारात भी हैं इनके पास, हेड ऑफ द स्टेट है जैसे, और जितने भी नेशनल लॉ वगैरह इन्फोर्स करना है वो भी यही लोग करते हैं। ठीक, और क्वीन जो है सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस भी हैं, नेवी वगैरह, ये भी इनके अंडर ही काम करती हैं। दूसरे मुल्कों से अगर एम्बेसडर्स वगैरह है उनको अपॉइंट भी रिसीव भी कर सकती हैं। ठीक है, और अगर बड़े ओहदे पर किसी को अपॉइंट करना है ये भी ये लोग कर सकते हैं, लेकिन अगेन सिर्फ थ्योरी में। प्रैक्टिस में ये काम सारे जो है प्राइम मिनिस्टर करता है और उसका कैबिनेट करता है। लेजिस्लेटिव इख्तियारात भी हैं, मतलब अगर कानून साजी वगैरह करनी है, मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट का मीटिंग जो है बुलाना है, या उसको जो है इवन पार्लियामेंट को डिज़ाल्व करना, ये इख्तियार भी इनके पास है। लेकिन हकीकत में वक़्त के साथ साथ तमाम के तमाम पावर्स जो है क्राउन से ले लिए गए, किंग और क्वीन से ले लिए गए और पार्लियामेंट को दे दिए गए, और फिर पार्लियामेंट से भी ले लिए गए, हाउस ऑफ कॉमन्स को दिए, और हाउस ऑफ कॉमन्स से भी ले लिए गए, कैबिनेट को दे दिए गए। और कैबिनेट का जो फिर हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। चंद चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है अगर आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पेपर 2 में अच्छा स्कोर करना है। चंद चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने याद करनी है, बिल्कुल रटा लगाते हो या कंसेप्ट क्लैरिटी करो। बेसिक चीज़ें बताता हूँ। आप डिफिनीशन ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट डिफिनीशन, पार्लियामेंट की डिफिनीशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की डिफिनीशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी तरह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, और साथ में फिर रियल हेड और अनरियल हेड, रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, दोनों में फ़र्क जो है। ठीक है, कैबिनेट के इख्तियारात, फिर क्या बाई कैमरल और यूनिक कैमरल, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चंद 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर आप लोगों ने समझ लिया तो दुनिया के कोई भी सिस्टम को आप लोग फिर समझ सकते हो। ये बुनियादी ढांचा है। अब पाकिस्तान को समझने के लिए बस आपने सिर्फ कि यहाँ पर जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो प्राइम मिनिस्टर है, जो नॉमिनल है वो सदर होता है। इंग्लैंड में जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो प्राइम मिनिस्टर है, वो जो है कैबिनेट है, और जो नॉमिनल है, जो टिटुलर हेड है, जिसके पास आईनी तौर पर इख्तियारात हैं लेकिन उसका इस्तेमाल प्रैक्टिस में नहीं कर सकता, वो फिर किंग और क्वीन है। ठीक है, इसी तरह अगर पार्लियामेंट में देखा जाए तो फिर कुछ बाईकैमरल होते हैं। बाईकैमरल मतलब उसमें सेनेट आता है और नेशनल असम्बली कह लें, या लोअर हाउस और अपर हाउस आता है। ठीक, तो उसमें 2 हाउसेस। यूनिकैमरल में सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। यूनिटरी का मतलब फिर ये है कि सारा का सारा ताकत जो है सूबे उसमें नहीं होते, उसमें सारा का सारा ताकत सेंटर के पास होता है। अब पाकिस्तान फेडरल है, सूबे भी हैं, और इस्लामाबाद में जो है वफाकी हुकूमत भी बनती है, तो ये फेडरल है। इंग्लैंड का यूनिटरी फॉर्म है, वहाँ पर ये सूबे और स्टेट्स और ये कंसेप्ट नहीं है, लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, वो आगे चलकर टॉपिक भी पढ़ाऊंगा। लेकिन तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट के पास हैं, सेंटर के पास होते हैं। ये 6-5 कंसेप्ट ऐसे हैं, और ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ पेपर 1 में। ठीक है, वहाँ पर एक चैप्टर में आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी पढ़ा चुका हूँ,
मैं आपको एग्जीक्यूटिव पर भी टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको जो है बाइकैमरल और यूनिकैमरल पर भी टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, मैंने आपको फेडरल और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर भी जो है या स्टेट पर भी जो है आप लोगों को टॉपिक दिया था, इवन पेपर का हिस्सा भी हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है आज भी इन बेसिक चीज़ों को इग्नोर करते हैं, और यही फिर मसला बनता है कि मैं तो आगे जा रहा हूँ और इनको ये पता नहीं होता कि पार्लियामेंट क्या है, कैबिनेट क्या है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, सदर कौन होता है, किस सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, किस सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर के पास कम इख्तियारात होते हैं, और किस सिस्टम में सदर के पास ज़्यादा इख्तियारात हैं और किस सिस्टम में सदर के पास कम इख्तियारात होते हैं या इख्तियारात न होने के बराबर होते हैं। अगर इन सारे सवालों का जवाब आप लोगों ने ढूंढ लिया तो यकीन करें कि आपसे कोई भी जो है पॉलिटिकल साइंस पेपर में ज़्यादा मार्क्स नहीं लेगा। ये 150 स्कोर और 154 और 160 तक जो स्कोर करते हैं आप इससे भी आगे चले जाएंगे। अच्छा, एनी हाउ ये मैंने टिप भी दे दिया, ये क्लास के बाद एक पोस्ट भी आप लोगों को दूंगा और ये जो है आपके वीकली एग्जाम का हिस्सा भी होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके कुछ और फंक्शंस हैं उसको देख लेते हैं, और उसमें हमारे पास हैं जुडिशियल फंक्शंस कि क्राउन के पास जुडिशियल फंक्शंस भी है, मतलब अगर किसी को माफ़ी देना चाहे, सज़ा देना चाहे, ये भी दे सकते हैं। ठीक है, और साथ में जजेस को अपॉइंट करना हो, इवन जजेस को निकालना हो, ये भी क्राउन कर सकता है। एक्लेसियस्टिकल इख्तियारात भी हैं। एक्लेसियस्टिकल का मतलब ये है कि चर्च जो है, चर्च ऑफ इंग्लैंड, इट आल्सो वर्क्स अंडर द पेट्रोनेज ऑफ द क्राउन, मतलब चर्च है उसके लिए बिशप्स, आर्च बिशप्स अपॉइंट करना हो तो फिर यही लोग अपॉइंट करते हैं, यहाँ तक कि सैलरी वगैरह भी यही लोग डिटरमिन करते हैं। तो चर्च भी इन लोगों के मातहत है, स्टेट के अंदर ही वो भी काम करता है। लेकिन ये तमाम के तमाम इख्तियारात दैट इज़ इन थ्योरी, और यही वजह है कि एक स्टेटमेंट भी पास होता है दैट द किंग कैन डू नो रॉन्ग, कि किंग जो है वो कभी गलती कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि किंग जो होता है वो इनोसेंट है। किंग जो है वो बेचारा घर में बैठा रहता है, तमाम के तमाम काम जो मुल्क को संभालने वाले हैं वो कैबिनेट मेंबर्स करते हैं, वो जो मेजॉरिटी पार्टी होती हैं उसी के मेंबर्स करते हैं, पार्लियामेंट करता है और प्राइम मिनिस्टर करता है। तो अगर गलती भी होती है उन लोगों से हुकूमत संभालने में तो फिर जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर होगा, जिम्मेदार कैबिनेट मेंबर्स होंगे, जिम्मेदार उसका जो पार्लियामेंट है वो होंगे, किंग और क्वीन जिम्मेदार नहीं होंगे। और यही वजह है कि फिर कहा जाता है कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग। और आपकी किताब में बड़ा एक छोटा सा वर्स लिखा है, ठीक है, किसी पोइट ने, और बड़ी ज़बरदस्त बातें है कि हियर लाइज आवर सावरन लॉर्ड द किंग, कि यहाँ पर है हमारा सावरन, खुद मुख्तार बंदा जो किंग खुद को कहता है, whose words no one relies on, जिसके अल्फाजों पर कोई अपने कान भी नहीं धरता, who never says foolish thing, जो कभी गलती कर ही नहीं सकता, गलत बात कर ही नहीं सकता, foolish thing कर ही नहीं सकता, never ever does a wise one, और ना कभी अकल की बात कर सकता है। तो ना वो बेवकूफ़ी की बात कर सकता है, ना वो कुछ गलत कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो बेटा ही रहता है। तो अगर आप लोग भी कभी भी गलती नहीं करना चाहते देन डोंट डू एनीथिंग, ठीक है? तो तब आप ना सही काम कर सकते हैं ना गलत काम कर सकते हैं। तो इंग्लैंड का किंग और क्वीन इसी तरह है। एनी हाउ, थ्योरी एंड प्रैक्टिस की बात आ जाए तो फिर यही बात होती है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जनाब इंग्लैंड में मोनार्की क्यों है जब पूरी दुनिया से मोनार्की ख़त्म हो रही है या हो चुकी है तकरीबन? तो इसके फिर 2-3 जवाब देता हूँ। किताब में इस पर 2-3 पेजेस लिखे हैं, मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है? एक बात यह है कि द पीपल ऑफ इंग्लैंड दे आर हाईली कंजर्वेटिव, ये बिल्कुल कंजर्वेटिव हैं, चूँकि ये भी एक हज़ारों सालों से चलती एक रिवायत है। वो इतने कंजर्वेटिव है कि अब वो इसको ख़त्म नहीं करना चाहते। एक आर्गूमेंट। दूसरा आर्गूमेंट ये है कि
लेक ऑफ रिपब्लिकन सेंटिमेंट, कि इन लोगों में जो रिपब्लिकन या जमहूरियत या जो भी कह लें उसके जो जज्बात है, सेंटिमेंट है, फीलिंग्स हैं, थोड़े से कम है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि जब 17वीं सेंचुरी में तकरीबन 1649 से 1660 तक, ठीक, ये 11 साल जो है इन लोगों ने मोनार्की को ख़त्म किया था। कोई किंग और क्वीन नहीं था, क्रोमवेल आया था, ठीक है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म, लेकिन ये नहीं चल सका। 11 साल के बाद इन लोगों ने वापस जो है मोनार्की रिस्टोर कर दी, वापस मोनार्की। फिर एक और शख्स था जेम्स II, वो अपनी ही हालात से तंग आ गया और फ्रांस भाग गया कि बस मैं नहीं बनना चाहता, किंग नहीं बनना चाहता। फिर इन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे शख्स, उसका नाम विलियम था और उसकी बीवी मैरी, उसको बुलाया और उसको कहा कि बस जेम्स तो भाग गया, अब आप हमारे किंग और क्वीन बन जाएं। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग, ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उसको पसंद करते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म भी बनाया है, पार्लियामेंट भी है, लेकिन साथ में मोनार्की को ख़त्म नहीं करना चाहते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो 54 नेशंस, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है, उसने जो कॉमनवेल्थ नेशंस बनाया है तरक्की के लिए, फलाही के लिए और बाकी ऐसे पीस के लिए, अमन के लिए, उसका पर्पस कॉमनवेल्थ नेशंस का ये है। उसका जो हेड है वो क्वीन है, क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो इसका मतलब ये है कि इसने 54 ममालिक की जो यूनिटी है उसको बरकरार रखी है। अगर ये हटा दी जाए तो खदशात ये हैं कि फिर उसमें जो है या तो डिसेबल हो जाएगा या टूट जाएगा, या और जो है उसकी सदारत पर या उसकी सरबराही पर जो है लड़ेंगे। फिर पाकिस्तान चाहेगा कि मैं बन जाऊं, इंडिया चाहेगा कि मैं, इंग्लैंड चाहेगा कि मैं, और कनाडा चाहेगा कि मैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बस सब ने इसको मान लिया है और अब है। इसी तरह ही इज अ मीडिएटर इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में भी एक मीडिएटर का किरदार अदा करता है। मिसाल के तौर पर अगर दो पार्टियों के दरमियान मसाइल हो तो फिर ये किंग या क्वीन जो है उस मसाइल को हल कर सकते हैं, बिकॉज दे बिलोंग टू नो पार्टी, वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, तो इस वजह से ये सालिस का किरदार आसानी से अदा कर सकते हैं। अच्छा, 5वां पॉइंट, ये टिटुलर हेड है, ठीक है, किंग और क्वीन है लेकिन टिटुलर हेड है। अब ये है या ना है, हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइम मिनिस्टर को, पार्लियामेंट को, किसी सियासी पार्टी को, इनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर जो कंजर्वेटिव है या इसका कोई सिंबल ऑफ यूनिटी है फॉर द कॉमनवेल्थ नेशंस, तो फिर क्यों ना इसको भी रख ले। अगर ये ना होते तो फिर सदर को रखते, और सदर को भी जो है प्राइम मिनिस्टर तो इख्तियारात न देता, जैसे पाकिस्तान में है, वो टिटुलर हेड होता। तो जब टिटुलर हेड सदर होता तो सदर ना हो, तो क्वीन को रख ले, किंग को रख ले, तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट आर्गूमेंट की तरफ, जो अगर आप लोगों ने पेपर में लिख दिया तो एग्जामिनर भी खुश होगा और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। और वो आर्गूमेंट ये है कि इस शख्स से किसी भी पार्टी को जो मेजॉरिटी में है कोई ख़तरा नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी इख्तियारात हैं इस क्वीन या इस किंग ने पार्लियामेंट को दे दिए। जब भी ज़रूरत पड़ी पार्लियामेंट को इख्तियार की, किंग और क्वीन ने वो इख्तियारात दे दिए। अब दुनिया में जब मोनार्की ख़त्म हुई वो इसलिए ख़त्म हुई क्योंकि जितने भी मोनार्क थे उन लोगों ने कब्जा किया हुआ था तमाम के तमाम पावर्स पर, तो बाकी लोग उससे पावर के लिए लड़ रहे थे और उससे पावर छीनना चाहते थे, और इसके बदले में या तो उसको मार दिया जाता और या ही उसको ख़त्म कर दिया जाता और एक नया सिस्टम मुतारिफ करा दिया जाता। इंग्लैंड में आज तक मोनार्की इसलिए मौजूद है क्योंकि किंग और क्वीन ने तमाम के तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए, इन ही सियासी लोगों को दे दिए, और उससे कहा कि बस हमें छोड़ दे, हमारे सारे पावर्स आप लोग इस्तेमाल करें। तो ये आर्गूमेंट बड़ा वैलिड है, और यही बात है कि इंग्लैंड में आज भी मोनार्की है और पूरी दुनिया से जब के मोनार्की ख़त्म हो गई। अच्छा,
अब आते हैं द किंग कैन डू नो रॉन्ग, एक छोटा सा टॉपिक है, तो इसका जवाब ये है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किंग कभी गलती नहीं कर सकता। गलती क्यों नहीं कर सकता? वजह क्या है? तो इसकी वजह ये है क्योंकि किंग और क्वीन जो है दे आर टिटुलर हेड्स, टिटुलर हेड है। दे डोंट परफॉर्म एनी एक्शंस, all the actions are the policies carried out in the country in the name of king or queen by the cabinet, by the prime minister, by the ministerial staff of the prime minister. So that is why if anyone would be responsible or accountable for the acts done, they would be the prime minister, they would be the ministers, but not the king or क्वीन। और इसके लिए आप लोगों को एक मिसाल दे दूं, 17वीं सदी में एक शख्स था, फॉरेन मिनिस्टर था, चलो नाम यहाँ पर देख लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ डैन बाई उसका नाम है। उसने सीक्रेट एक मीटिंग रखा फ्रांस के साथ, फिर उस पर एक मुकदमा चला कि आपने तो मुल्क के साथ गद्दारी की है, आप कैसे सीक्रेटली जा सकते हैं और वहाँ पर एक मीटिंग रख सकते हैं। तो उसने तमाम का तमाम जो मलबा था वो डाल दिया किंग पर कि आई डिड इट अंडर द नेम ऑफ द किंग, कि मैंने तो उसके नाम से किया है, तो अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है सज़ा देनी है तो किंग को दे दे। लेकिन अदालत ने उस किंग को सज़ा नहीं दी। अदालत ने ये जो है एक प्रेसिडेंट जो है कायम किया कि नहीं, उसका तो सिर्फ नाम इस्तेमाल होता है, काम तुमने किया है, लिहाजा सज़ा भी तुम्हें देनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है आज तक ये कहा जाता है कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग। अच्छा, अब रियल इख्तियारात किसके पास हैं, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? तो वो है फिर हमारे पास कैबिनेट। कैबिनेट के पास कौन कौन से इख्तियारात हैं अभी बताता हूँ, ठीक है। कैबिनेट के बारे में कहा जाता है कि दैट इज द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द स्टेट, कि जो स्टेट को जो चलाने वाला एक स्टीयरिंग है वो हमारे पास कैबिनेट होता है, कैबिनेट ऑफ इंग्लैंड। ये पूरे मुल्क को चलाता है। अब पाकिस्तान से मिसाल दूं तो आप लोगों को आसानी से समझ आएगी, ठीक है। पाकिस्तान में तमाम के तमाम फंक्शंस जो है ये वज़रा जो है वो अदा करते हैं। बाकी भी MNAs होते हैं, लेकिन आपने नहीं देखा होगा कि वो टीवी पर भी आए, वो मुल्क की पॉलिसीज़ को भी डिस्कस करें वगैरह वगैरह। लेकिन जो मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वज़ीर ख़जाना हो, चाहे वज़ीर तालीम हो, जैसे इस कोविड-19 की वजह से जो तालीम का जो वजारत है वो बड़ा हाईलाइट होता जा रहा है। शफकत महमूद साहब जो बच्चों का वज़ीर आज़म भी कहलाता है, ऐसे ही सटेरिकली या आयरानिकली लोग इसको बच्चों का वज़ीर आज़म कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है ज़्यादा हाईलाइट भी होते हैं, टीवी पर भी आते हैं, मीडिया पर भी आते हैं, पॉलिसीज़ बताते हैं कि हमने एजुकेशन के लिए जो है सिंगल नेशनल करिकुलम जो है अगस्त से इंट्रोड्यूस करना है इस साल, ठीक, और हमने ये करना है वो करना है। साथ में प्राइम मिनिस्टर आता है। बाकी जितने भी MNAs होते हैं बस वो बेचारे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं। अगर किसी जगह पर वोट की ज़रूरत हो तो ये लोग वोट देते हैं। बाकी अगर फंडिंग अपने इलाके के लिए फंडिंग है वो रिसीव कर लेते हैं, और इलाकाई एक छोटे से इलाके तक वो महदूद होते हैं। लेकिन मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर के पास ख़ास लोग होते हैं, उसकी अपनी मीटिंग होती है, मुल्क के लिए पॉलिसी बनाते हैं कि जनाब अब TLP का मसला है, इसके साथ क्या करें। तो कैबिनेट के मेंबर्स मीटिंग करते हैं, फिर कैबिनेट के मेंबर्स जो है पार्लियामेंट में आते हैं और पार्लियामेंट में उस चीज़ को फिर बाद में डिस्कस किया जाता है। लेकिन पहले जो है प्राइम मिनिस्टर और चंद लोग होते हैं। इंग्लैंड में तकरीबन जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मेंबर्स हैं इस वक्त बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर है और उसके साथ 22 मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये वेरी करते हैं, 16 से 25 के बीच जो है वेरी करते हैं। इसकी तादाद 16 भी हो सकती हैं, 17, 20, 22, 23 भी हो सकती हैं। इस वक्त जैसे मैंने कहा कि 22 है या 23 है। तो ये लोग जो है तमाम के तमाम पॉलिसीज़ फिर मुल्क के लिए बनाते हैं, और यही रियल एग्जीक्यूटिव भी कहलाते हैं, और यही जो है सारे फंक्शंस अदा करते हैं।
अब इनके फंक्शंस क्या है, थोड़ा सा फंक्शन भी बता दूं। आपकी किताब में इसकी तारीख भी लिखी गई है और तारीख में आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि कैबिनेट कहां से आया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था और कहां से आया, वो पूरी कहानी मेरे पिछले लेक्चर में मौजूद है, तो दोबारा दोहराना नहीं चाहता क्योंकि फिर लेक्चर भी लेंथी हो जाएगा और वो आप लोगों का जो सवाल और जवाब का सेशन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो कैबिनेट जो है इसके फंक्शंस क्या है वो देख लेते हैं। एक फंक्शन जो है उसका ये है कि मुल्क के लिए जितने भी पॉलिसीज़ हैं बनाए जाते हैं, दीज पॉलिसीज़ आर डिटरमिन्ड बाय द कैबिनेट मेंबर्स, और वो यही मेंबर्स बनाते हैं और ये फिर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी है इनके पास। एग्जीक्यूटिव का मतलब ये है कि जो कानून बनाए जाए बस उस कानून को इन्फोर्स करना वो भी इसी का काम है। मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट से एक कानून पास हो गया, ठीक है, कानून ये पास हुआ कि जितने भी बच्चे हैं उसका जो बैग है, बैग ये 2 kg से ज़्यादा नहीं होगा, ये कानून पास हो गया सपोज। अब ये फिर जो मुतल्लिका मिनिस्टर हैं और उसके नीचे जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो फिर इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे और इन्फोर्स करेंगे लोगों पर। इसी तरह फॉरेन पॉलिसी वगैरह ये भी प्राइम मिनिस्टर और उसके पास खास मिनिस्टर होता है। बजट वगैरह तैयार करना है तो ये सब कुछ यही कैबिनेट से होता है। लेजिस्लेशन में भी अहम हिस्सा लेते हैं। लेजिस्लेशन मीन कानून साजी में, तो जैसे मैंने कहा कि कानून साजी तो पार्लियामेंट से होती है, हाउस ऑफ कॉमन से और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से होती है। पाकिस्तान में नेशनल असम्बली से और सेनेट से होती है, लेकिन लेजिस्लेशन कानून साजी, लेकिन ये पॉलिसी कौन देता है कि फलां चीज़ पर आप लोग कानून बनाएं और फिर पार्लियामेंट में आते हैं, वो कैबिनेट वाले होते हैं, उनके पास ये इख्तियार होता है, ठीक है। फाइनेंशियल फंक्शन जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वहाँ पर इंग्लैंड में चांसलर ऑफ एक्सचेकर उसको कहा जाता है। ये शख्स जो है बजट तैयार करता है और फिर अनाउंस भी करता है और पार्लियामेंट से उसको मनवाता भी है, अप्रूव भी करता है। पाकिस्तान में उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री और अभी जो है उसको शौकत तरीन को बनाया गया है और ये ट्रस्ट भी किया जा रहा है कि ये मुल्क की महंगाई को भी कंट्रोल करेगा और जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है उसको भी बढ़ाएगा। और ये जो है मेरे ख्याल में कप्तान के पास तेज़तरीन दिमाग अब आया है शौकत हफीज़ शेख के बाद, ठीक है, तजर्बे है, बस करते रहते हैं, हमारा मुल्क है। एनी हाउ ये बातें आप लोग पेपर में ना लिखे, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कुछ भी ना लिखे, बस तारीफ़ ही लिखते रहे, क्योंकि आप लोगों को जॉब चाहिए, ठीक है, आप लोग कोई हुकूमत नहीं मांग रहे हैं किसी से। जुडिशल फंक्शंस भी हैं इनके पास। जुडिशल फंक्शंस जो है मतलब ये जजेस वगैरह को अपॉइंट करना, सैलरीज वगैरह, या कभी कभार इवन को हटाया भी जा सकता है और वो भी जो है प्राइम मिनिस्टर जब या पार्लियामेंट उसको कह दें, ये क्या है, किंग और क्वीन को कह दे कि फलां शख्स को हटा दे तो फिर उसको हटाया भी जा सकता है। कैबिनेट का एक फंक्शन ये है कि इट इज़ फंक्शंस एज अ कोऑर्डिनेटर, कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। मिसाल बताता हूँ, अभी कोविड-19 आया, ठीक है, तो NCOC मीटिंग बुलाई जाती है, ठीक है। NCOC मीटिंग में यही मिनिस्टर्स फिर बैठ जाते हैं और फिर बताते हैं कि देखो एजुकेशन मिनिस्टर बैठा होता है तो उसको कहा जाता है कि आप अपने तालीमी जो इदारे हैं उसको बंद करें, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन है। और इसी तरह एक अगर होम डिपार्टमेंट किसी के पास है, ये पुलिस वगैरह, तो उसको कहा जाता है कि आप अपने इसको ठीक करें। दूसरे को कहा जाता है कि आप जो ये DCs वगैरह हजरात होते हैं, AC वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा एक्टिव रखें ताकि लोग जो है सही तौर पर काम कर सके। जो हेल्थ का मिनिस्टर होता है फिर वो उसको बताया जाता है कि आप जो है ये वैक्सीनेशन और डॉक्टर और नर्सिंग वगैरह स्टाफ को जो है ठीक करें। तो ये सब जो है एक कोऑर्डिनेशन से होता है, कोऑपरेशन से होता है, और उसमें कैबिनेट में ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। बस यही 20-25 लोग होते हैं जो पूरे हुकूमत को भी कंट्रोल करते हैं और रियल एग्जीक्यूटिव भी कहलाते हैं। और इसमें ये क्या क्या खसूसियात और है जो इंग्लैंड की बताता हूँ। एक ये है कि एक्सक्लूजन ऑफ द किंग, कि इसने बिल्कुल किंग को एक्सक्लूड किया। अब जो
रियल काम है वो प्राइम मिनिस्टर और उसका जो मिनिस्टीरियल स्टाफ है वो करता है, और प्राइम मिनिस्टर और उसका मिनिस्ट्रियल स्टाफ ही कैबिनेट कहलाता है। ये बात भी जहन में रखें। मुसीबत ये क्या, मैं कैबिनेट लगा रहता हूँ और आखिर में मुझसे पूछा जाता है 1 घंटे बाद कि सर ये कैबिनेट क्या है, तो तब इंसान को अफसोस होता है। ठीक है, तो कैबिनेट जो है प्राइम मिनिस्टर और उसका जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है वही गवर्नमेंट भी कहलाता है, और वही जो है रियल एग्जीक्यूटिव भी हैं इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जिधर भी आप पार्लियामेंट्री फॉर्म, चाहे इंडिया है चाहे पाकिस्तान है, इधर भी यही सब कुछ चलता है। फिर आती है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब ये है कि एक ही पार्टी के मेंबर्स होते हैं। ये मेजॉरिटी पार्टी से कैबिनेट बनता है, मेजॉरिटी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर अपने लिए खुद एक कैबिनेट बनाता है, टीम बनाता है प्राइम मिनिस्टर का टीम। ठीक है, तो ये कैबिनेट बन जाता है। तो इसमें होमोजेनिटी होती है, यकसानियत कह ले या यूनिटी कह ले, एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं। यूनिटी ऑफ द कैबिनेट, जैसे सब एक पार्टी से हैं तो उसमें यूनिटी भी होती है, और यूनिटी से मुराद ये भी है कि अगर 20 बंदे हैं, 18 का फैसला एक है और 2 का फैसला अपोजिट है, उसके अपोजिट, तो ये 2 भी फिर मान जाते हैं, क्योंकि मेजॉरिटीज अथॉरिटी वाली बात आ जाती है, तो वो फिर जो है पूरे मेजॉरिटी के फैसले से हट नहीं सकते, फिर ये उसके साथ यूनिटी में कायम रहते हैं, और यही वजह है कि ये कैबिनेट की ताकत भी बन जाती है। और अगर किसी को एतराज़ है तो वो फिर कैबिनेट को छोड़ सकता है, जा सकता है, जो कि अमूमन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनके पास पावर्स होते हैं, और पावर जो है कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। दूसरी बात इसमें है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर एक शख्स पर भी ये बात मतलब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो फिर पूरा कैबिनेट जो है ख़त्म होगा। एक कैबिनेट के एक मेंबर पर भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद का वोट पार्लियामेंट से आया, तब जो है ये अमूमन होता नहीं है, क्योंकि कैबिनेट जो है मेजॉरिटी पार्टी से आती है, तो मेजॉरिटी पार्टी जो है कभी भी अपने प्राइम मिनिस्टर और अपने कैबिनेट के मेंबर्स के खिलाफ नहीं जाती। तो और बाकी तो माइनॉरिटी में होते हैं, या हम क्या कहते हैं अपोजिशन में होते हैं, तो उसके पास अक्सरियत उतनी नहीं होती कि वो जो है एक प्राइम मिनिस्टर को हटा सकें या एक मिनिस्टर को हटा सके। तो इस वजह से ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन बड़ी मुश्किल से, इतना नहीं हो सकता। और इसको जो लीड करने वाला शख्स होता है वो प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर के पास सारे के सारे इख्तियारात हैं, वो आगे चलकर आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, वर्चुअल डिक्टेटर एक टॉपिक है कि जो कैबिनेट ऑफ इंग्लैंड है वो अब वर्चुअल डिक्टेटर बन चुका है। वर्चुअल डिक्टेटर का मतलब ये है कि अब इसकी ही हुक्मरानी है, किंग के पास इख्तियार नहीं है, पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं है, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास थोड़े बहुत इख्तियारात हैं, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन को कौन डिक्टेट करता है? कैबिनेट डिक्टेट करता है। कैबिनेट उसको बताता है कि जनाब आप ये कानून बनाएं और इस पर अभी आप लोग फैसला साजी करें, पार्लियामेंट में बस बहस मुबाहिसा करें, फिर वहाँ पर उस बिल को भी पास किया जाता है, उस कानून को भी पास किया जाता है। अगर एक मसला है तो उस इशू पर बात भी हो सकती है। जैसे अभी TLP का मसला आया, मसला प्राइम मिनिस्टर तक और कैबिनेट मीटिंग हो गई, और फिर उसने कहा कि हम इस बात को पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे, ज़ेरे बहस लाएंगे, और उस पर बहस हो गया पार्लियामेंट में। ठीक है, किसके कहने पर? कैबिनेट के कहने पर ये सब हुआ। एनी हाउ, अब अगर देखा जाए तो ये कैबिनेट के पास ये इख्तियार है कि ये जो है रिज़ाइन करे। अगर रिज़ाइन किया तो इसका मतलब है न्यू इलेक्शन, नए इलेक्शन हो जाएंगे। तो अब अगेन ये जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उसके ऊपर जो है एक लटकती तलवार की तरह है, क्योंकि वो तो यही कहेंगे कि अगर ये लोग नाराज़ हो गए, इन लोगों ने रिज़ाइन दे दिया, तो बस फिर तो हमारी सीटें भी चली गई, हमारा पार्लियामेंट, हमारा पावर, हमारा जो इतना वोट बैंक और ये सब कुछ, ये तो अबस चला गया। ठीक है, तो इसके पास ये इख्तियार भी है। और यही इन लोगों के पास यहाँ तक इख्तियार है कि ये जो है क्या कहते हैं कि सीक्रेट
कभी कभार ये पार्लियामेंट आते भी नहीं हैं और पॉलिसीज़ बना लेते हैं। जैसे आप लोग जानते भी हैं कि कर्ज लेते हैं IMF से और पार्लियामेंट को खबर तक नहीं देते, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी हमेशा पार्लियामेंट में भी कहता है और टीवी पर भी आकर कहता है कि आपने जो फैसले या जिन शराइत पर पैसे लिए सऊदी अरब से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक से, तो फिर हमें बताएं कि किन शराइत पर ली हैं। इवन पार्लियामेंट को ना भी बताएं तो ये लोग ये काम कर सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो वो फॉरेन मिनिस्टर जा सकता है अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ पर तो हमारा आर्मी चीफ भी जाता है, तो वो जाएं, पॉलिसीज़ करे जो भी हैं, पार्लियामेंट को एतमाद में भी ना ले, तो ये लोग कर सकते हैं ये काम। बाकी इसकी डिक्टेटरशिप इसलिए भी है क्योंकि ये एक ख़ास पार्टी से आते हैं और उस पार्टी में एक डिसिप्लिन होता है। तो जो शख्स भी अपनी ही पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ जाते हैं तो फिर उसको निकाल दिया जाता है। और ये आप लोगों को पता है कि 2014 में या 15-16 में जब इलेक्शन हुआ सेनेट का, तो PTI ने 27 लोग जो है अपने ही पार्टी के मेंबर जो है मोर देन 20 या तकरीबन 27 तक थे, उसको निकाल दिया था पार्टी से। क्यों? क्योंकि सेनेट में उन लोगों ने अपनी पार्टी को वोट नहीं दिया था, या रिश्वत ली थी या जो भी है, ठीक है, लेकिन अपनी ही पार्टी को सपोर्ट न करने पर उसको निकाल दिया था, पार्टी से निकाल दिया था। इसी तरह इस वक्त अगर कोई मिनिस्टर अपनी ही पार्टी के मुखालिफ बयान दे रहे तो उसको हटाया जाता है। अगर कोई MNA पाकिस्तान में भी कह रहा हूँ बयान दे रहे पार्टी के खिलाफ, उसको हटाया जा सकता है बाय द कैबिनेट, बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो फिर इसलिए इसको कहा जाता है कि ये तो फिर कैबिनेट की फिर क्या है, डिक्टेटरशिप है, और कैबिनेट ही सब कुछ कंट्रोल करता है। दूसरी बात यह है कि इंग्लैंड में 2 पार्टी सिस्टम है, तो एक पार्टी जो है अपोजिशन में जाती है और एक पार्टी हुकूमत में आती है। तो जब 2 पार्टियां होंगी तो जो पार्टी हुकूमत में आती है, मेजॉरिटी से आती है, उसके खिलाफ अपोजिशन सिर्फ एक पार्टी है, ठीक है, तो वो ज़्यादा मजबूत रहती हैं बनिस्बत मल्टी पार्टी सिस्टम के। जैसे पाकिस्तान में है कि हुकूमत तो है लेकिन इस हुकूमत के साथ इत्तेहादी बहुत है। जैसे कि PTI है तो PTI के साथ काप लीग भी शामिल होती है, MQM भी शामिल होते हैं, बलूचिस्तान के कुछ लोग भी शामिल होते हैं। तो जब भी ये लोग पॉलिसी बनाते हैं इन लोगों को खुश करते हैं, सारे इत्तेहादी पार्टियों को खुश किया जाता है, और इसकी वजह से जो है इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंटली ये लोग फैसले नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू द पार्टी सिस्टम इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में तो एक ही पार्टी होती है जो हुकूमत में आती है, एक पार्टी फिर अपोजिशन में, तो उस एक पार्टी की ताकत भी फिर ज़्यादा होती है और वो फिर जो चाहे करे, पूरा पार्लियामेंट उसके कब्जे में होता है। अब जो यहाँ पर पाकिस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम है तो यहाँ पर तो सारी की सारी जो अक्सरियत है वो PTI की नहीं है, उसके साथ इत्तेहादी मौजूद है। अगर ये इत्तेहादी उसके खिलाफ हो जाएं तो फिर ये पार्लियामेंट से एक छोटा सा एक्ट भी पास नहीं कर पाएंगे। इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, इंग्लैंड में फिर 2 पार्टी सिस्टम है, तो वहाँ पर जो है अपोजिशन कमज़ोर रहती है और जो कैबिनेट होता है चूँकि मेजॉरिटी पार्टी से आती हैं वो ज़्यादा मजबूत रहते हैं, और इस वजह से इसको फिर कहा जाता है कि दे आर दी वर्चुअल डिक्टेटर्स। अच्छा, कमेटी सिस्टम है वहाँ पर। कमेटी सिस्टम का मतलब ये है कि इसी कैबिनेट के छोटे छोटे कमेटीज़ भी होते हैं। पाकिस्तान में हर वक्त कमीशन के फ़ला चीज़ के लिए कमीशन बनाओ, उसके लिए कमीशन बनाओ, इन लोगों ने कमेटीज़ बनाई होती है, ठीक है, और यही कमेटीज़ जो है फिर काम करते हैं। तो ये जो कुछ भी करते हैं पार्लियामेंट को नहीं बताते, बल्कि अपनी ही कमेटी को जो है बुलाते भी हैं, उससे बात भी करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं और उस कमेटी को कहते हैं कि आप ये काम करें, बजाय इसके कि वो पार्लियामेंट को कह दें। तो इस वजह से भी ज़्यादा पावर जो है कैबिनेट के पास है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, शॉर्ट करके बताता हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 2018 या 17 में भी आ चुका है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड के जो है क्या इख्तियारात है। और अगर हम इसको अमेरिका की सदर के साथ कंपेयर करें तो बेहतर होगा। एनी हाउ, जब मैं अमेरिका का सदर पढ़ाऊँगा तो ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, उधर मैं आप लोगों को ये कंपैरिजन भी बताऊँगा और फिर आप लोगों को समझ भी आएगी
आज जो है सिर्फ इतना समझ लें कि ये प्राइम मिनिस्टर होता कौन है, कैसे आता है, इसके फंक्शंस क्या है। अच्छा, एक बात, प्राइम मिनिस्टर जो है, एक तो ये है कि इलेक्शंस होते हैं जैसे पाकिस्तान में होते हैं, फिर जो पार्टी जीत जाती हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में चली जाती हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है फिर जो मेजॉरिटी पार्टी होती हैं उसी से जो है किंग या क्वीन जो है प्राइम मिनिस्टर उठाता है। फिर प्राइम मिनिस्टर जो है अपने लिए कैबिनेट बना लेता है, ठीक, मतलब एक टीम बना लेता है, और फिर प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग द मिनिस्टर्स कह ले तो ये फिर कैबिनेट बन जाता है। अब प्राइम मिनिस्टर जो है क्या करता है, इसका जो फंक्शंस है, ही इज़ द लीडर ऑफ द कैबिनेट। तो कैबिनेट के जितने भी मीटिंग्स होते हैं और जो लोग होते हैं कैबिनेट के मेंबर्स, उनको जो ओहदे दिए जाते हैं, पोर्टफोलियो दिए जाते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर देता है। प्राइम मिनिस्टर ही कहता है कि ये एजुकेशन का मिनिस्टर होगा, ये हेल्थ का मिनिस्टर होगा, ये रेलवे का मिनिस्टर होगा, ये होगा और ये वो होगा, ठीक है। ये सारे के सारे पोर्टफोलियोज जो है प्राइम मिनिस्टर ही देता है। अब प्राइम मिनिस्टर किन लोगों को उठाता है ये भी काबिल गौर, या तो वो दोस्तों को उठा लेता है, ठीक है। ये थोड़ी सी अनडेमोक्रेटिक बात हो गई। डेमोक्रेटिक बात आ जाए तो अपनी ही पार्टी के मेंबर्स उठाता है, और अपनी ही पार्टी के जो सीनियर मोस्ट होते हैं, जिसके पास ज़्यादा सियासत की सोच और समझ बूझ हो, उन्हीं को फिर ये अपनी काबीना में शामिल करता है। अच्छा, ये जो है इन्हीं लोगों को शामिल भी कर सकता है और इन्हीं लोगों को फिर हटा भी सकता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार यही कहता है कि जो वज़ीर काम करेगा काबीना में रहेगा, जो काम नहीं करेगा उसको हटाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। इसी तरह इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसी के पास भी ये इख्तियार है। अच्छा, लीडरशिप ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, जो लोअर हाउस होता है, पाकिस्तान में लोअर हाउस को नेशनल असम्बली कहते हैं, इंग्लैंड में लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, ठीक है। उसका जो लीडरशिप है या जो लीडर है वो भी प्राइम मिनिस्टर होता है। अच्छा, फिर कहता है कि ही इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कैबिनेट एंड द क्वीन। कैबिनेट के जितने भी मेंबर्स हैं क्वीन के सामने नहीं जा सकते, जुर्रत उनकी नहीं हो सकती, ठीक है। कन्वेंशन है, कन्वेंशन ये बनाया गया है कि कैबिनेट के जितने भी वज़रा हैं वो क्वीन या किंग से नहीं मिल सकते। उसके दरमियान एक सालिस होगा, एक सोर्स होगा, और वो होगा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जाएगा, क्वीन से मुलाकात करेगा, एक मिनिस्टर की या काबीना मेंबर की बात पहुंचाएगा, फिर उसके बाद उसको इजाज़त दी जाएगी कि हाँ उसे ले आए, ठीक है। और ये रिस्पेक्ट की बात है कि बस ये लोग किंग और क्वीन को जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। फिर है हमारे पास कंट्रोल ओवर फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स के लिए तो फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, डिप्लोमेट्स होते हैं और साथ में सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार है कि ये सब लोग जो है प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते रहते हैं, और वो अगर चाहें तो फैसले भी ले सकता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ये होनी चाहिए। पाकिस्तान में भी है, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि यहाँ पर मुकम्मल डेमोक्रेसी नहीं है, इसी तरह कह लेंगे, तो जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है और स्ट्रेटिजिक पॉलिसीज़ हैं उसमें हमारे जो फौजी हजरात हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, सिविल में तो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उसका एक अहम किरदार है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास ठीक है इख्तियार है कि वो बना ले, लेकिन असल में पाकिस्तान में ये लोग अपनी ताकत इस्तेमाल करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो है ये फ़ौज ही डिसाइड करेगी, और फॉर स्ट्रेटिजिक जितने भी फैसले लिए जाएंगे तो वो फिर फ़ौज लेंगी, प्राइम मिनिस्टर नहीं ले सकता, अगरचे प्राइम मिनिस्टर को एतमाद में लिया जाता है। इंग्लैंड में फिर रियल इख्तियारात ये फॉरेन पॉलिसी के या फॉरेन अफेयर्स के प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। अच्छा, कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस, जो मुल्क का पूरा पर्स होता है वो इसी के हाथ में होता है, अगरचे इसके लिए तो फॉरेन क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है,
और यहाँ पर चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहा जाता है इंग्लैंड में। लेकिन वो भी अगर बजट तैयार करता है, उसको अप्रूव करता है, उसमें कोई कमी ज़्यादती करता है, तो पूरा कंट्रोल जो है प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। और क्यों होता है? क्योंकि यही फिर इसी मिनिस्टर को लगा भी सकता है और इसी मिनिस्टर को हटाया भी जा सकता है बाय द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, तो बाकी बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं। तो इसको कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास जो क्या कहते हैं कि ही इज़ प्राइमस इंटरफेरिस। प्राइमस इंटरफेरिस का मतलब ये है कि ही इज़ फर्स्ट अमंग इक्वल, कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं सारे के सारे बराबर हैं, बट ही इज़ द फर्स्ट अमंग इक्वल, वो इन सब में से पहला है। तो यही सबको कंट्रोल करता है और इसलिए ये कहा जाता है कि इसका जो रोल है एक डिक्टेटर की तरह है। ये एक डिक्टेटर ही है, ये सबको डिक्टेट करता रहता है। वो किसी को भी ज़िंदगी दे सकता है, किसी से जो है उसकी जॉब की ज़िंदगी जो है ले सकता है। इसका मतलब ये है कि वो कैबिनेट को बनाता भी है, कैबिनेट को चलाता भी है और कैबिनेट को ख़त्म भी कर सकता है। किसी को भी जो है मिनिस्टर बना सकता है और किसी को भी जो है उसी मिनिस्ट्री से हटा भी सकता है, रिज़ाइन उससे ले सकता है। तो इन 2-3 चीज़ों की वजह से कहा जाता है कि ही इज़ अ डिक्टेटर। वो उसका फंक्शन जो मीना गुलाले ही इज़ प्राइम, अच्छा लफ्ज़ तो ठीक लिखा है, स्पेलिंग ठीक नहीं है, फिर वो उसको ठीक करे, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास ये है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसको हम डिक्टेटर नहीं कह सकते। अगर पेपर में क्वेश्चन भी आए कि इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक डिक्टेटर है, तो इसको हम डिक्टेटर भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते वो भी बताता हूँ। इस वजह से कि ठीक है, वो किसी अपनी ही असम्बली को या अपने ही कैबिनेट को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं या नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर एक चिक मौजूद है और वो चिक है पार्टी का। क्योंकि अगर इसने एक दफ़ा पूरे असम्बली को डिसॉल्व कर दिया तो उसकी पार्टी में दरार जो है वो पैदा हो सकता है। पार्लियामेंट और कैबिनेट में जो है फिर एक दरार पैदा हो सकता है। फिर पार्लियामेंट कैबिनेट पर ट्रस्ट कभी भी नहीं करेगा और शायद उससे ये इख्तियारात लेने की कोशिश भी करे ताकि कैबिनेट के इख्तियारात कम हो जाए। एक बात। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर ये नहीं करेगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की रिज़ाइन और काबीना की रिज़ाइन का मतलब ये है कि दोबारा इलेक्शन कराना, तो कोई भी पार्टी जो है ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, क्योंकि इलेक्शन का मतलब है स्लीपलेस नाइट्स, पैसों का ज़िया, पैसे खर्च करना और फिर दिन रात सोना भी नहीं। और किसी के पास, आखिरी आर्गुमेंट बताता हूँ, किसी के पास ये गारंटी ही नहीं है कि मैं असम्बली डिसॉल्व करूँगा और अगले इलेक्शन में मैं फिर से जो है इलेक्ट होकर आ जाऊंगा। इतनी श्योरिटी किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह प्राइम मिनिस्टर के पास अगरचे ये इख्तियारात हैं लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो इस बिना पर हम ये कह सकते हैं कि ही इज़ फर्स्ट अमंग इक्वल बट ही इज़ नॉट अ डिक्टेटर। इख्तियारात है, बेतहाशे इख्तियारात है उसके पास, कुछ भी कर सकता है, लेकिन डिक्टेटर नहीं है। डिक्टेटरशिप का तो मतलब ये है कि वो किसी को भी मार सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है, ख़ुद कहीं भी नहीं जाएगा, ख़ुद रहेगा। जैसे हिटलर था, मुसोलिनी था, जब तक आप उसको कत्ल नहीं करते वो तो किधर भी नहीं जाएगा, वो डिक्टेटर होता है। लेकिन ये शख्स जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड या पाकिस्तान को भी ले लें तो ये शख्स जो है फिर नहीं कर सकता। अच्छा, अब आ जाते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें मुझसे क्वेश्चन, आस्क मी क्वेश्चंस। तो ये आज का टॉपिक था। आई होप यू गाइज आर स्टडी कर रहे हो, बुक लिया है, बुक को पढ़ रहे हो और टॉपिक की भी समझ आती हैं। जितना टाइम दे सकते हो पॉलिटिकल साइंस को दे रहे, क्योंकि यही सब्जेक्ट अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया सही तौर से तो बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं फिर वो पीस ऑफ केक होंगे, आसानी से समझ आएंगे। चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, चाहे वो आपकी जेंडर स्टडीज़ हैं, चाहे यूएसए हिस्ट्री है, चाहे पाकिस्तान अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, चाहे ऐसे के लिए प्रिपरेशन करनी है।
हुमा खान, वाई पाकिस्तान हैज़ मल्टीपल पार्टीज? बस ये तो शुरू से है ना, ये तो इस्टेब्लिश हुई थी, शुरू से है, ठीक है, इसमें कोई वो लॉजिक नहीं है। इंग्लैंड में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है, लेकिन जो पार्टियां हैं वो दो है। वहाँ पर जो है लेबर पार्टी भी आ जाती हैं कभी कभार, कंजर्वेटिव भी आ जाती हैं, ठीक है, एक और दो पार्टी भी, लेकिन वो इतने हाईलाइट नहीं होते, इतनी बड़ी नहीं होती कि पूरा का पूरा जो है वो जीत सके। असल बात डेमोक्रेसी की ये है कि कोई भी जो है इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम इसलिए क्योंकि आइन ने इसको कहा है, इख्तियार दिया है, तो इसी तरह इंग्लैंड में भी है, लेकिन लोगों ने बस फिर जो है दो पार्टियों पर ट्रस्ट किया है और यही पार्टियां जो है आज तक चली आ रही हैं। फिर पार्टी सिस्टम पर आप लोगों को एक लेक्चर भी दूंगा। और पाकिस्तान बस बिल्कुल अचार है, रीजनल पार्टीज़ में है, पश्तूनों ने अपनी एनपी बनाई हुई है, बलोचियों ने अपनी बनाई हुई है, हम इसको रीजनल पार्टी कहते हैं, रीजनल पार्टीज़, और ये बड़ी ख़तरनाक भी हैं, नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल यूनिटी के लिए ख़तरा भी है। एनी हाउ, अभी इस वक्त अभी तक जो दो पार्टियाँ थी, पीपल्स पार्टी और PMLN, यही दो पार्टियों का जो है राज चलता आ रहा है, आज तक है। और उसको देख ले, PTI को, ये तीसरी पार्टी वजूद में आई है, आप देखते हैं कि ये कहाँ तक compete कर पाती हैं। Ijaz, please elaborate on 2 or 3 points regarding limitation on the cabinet or PM. लिमिटेशन तो मैंने जनरली बता दिए ना कि इन लोगों पर, एक तो अगर इसको पार्लियामेंट में शामिल किया जाए तो एक लिमिटेशन ये है कि कोई भी ऐसा कानून ये लोग नहीं बना सकते जो नेचर के ख़िलाफ़ हो, मोरलिटी के ख़िलाफ़ हो, लोगों के जो सोच है उसके ख़िलाफ़ हो। उस दिन मैंने आप लोगों को सवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट की बात की थी, वो ये लोग नहीं कर सकते। अगर आज की लेक्चर की बात की जाए तो फिर PM जो है, एक लिमिटेशन इस पर यह है कि ये शख्स अगरचे असम्बली डिज़ाल्व कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये एक ख़ास पार्टी से ताल्लुक़ रखता है और पार्टी में जो है एक दरार पैदा हो सकता है, ये एक लिमिट आ गया, ठीक है। दूसरा लिमिट इस पर आ गया कि इलेक्शन दोबारा कराना इतना एक्सपेंसिव अमल है कि ये कोई भी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती। तीसरा ये है, किसी शख्स के पास ये गारंटी ही नहीं है कि वो दोबारा से वापस भी जीत सके। अच्छा, if Arioli has authority in practice, what is in need of him? Why government pays him salary? अच्छा, very good question. PM is not enough. हुमा खान, अगर उसके पास वो इख्तियारात नहीं है तो फिर वो क्यों बैठा हुआ है? तो जैसे मैंने कहा, हेड ऑफ़ द स्टेट तो होना चाहिए, अगरचे उसके पास इख्तियारात ना भी हो, जैसे कि थोड़े बहुत इख्तियारात तो हैं, ठीक है, और उसके लिए PM का होना या प्रेसिडेंट का होना लाजमी है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को असम्बली में, जो हमारा सिस्टम है उसको बता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट कौन करता है? सदर करता है। उससे फिर जो है जो ओथ कौन लेता है? सदर करता है, ठीक है। फिर इसका फंक्शन ये भी है कि थोड़े बहुत फंक्शंस हैं, इस वजह से हम इस पूरे ऑफिस को ख़त्म नहीं कर सकते कि बस आप सदर के फंक्शंस को हटा दें। जैसे मैंने अभी जो है किंग और क्वीन का बता दिया कि अगरचे इनका कोई फंक्शंस नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी लोग मोहब्बत करते हैं इनसे, कंजर्वेटिव है बाय नेचर, लेक ऑफ रिपब्लिकन सेंटिमेंट्स हैं, तो आज तक मोनार्की है, बस है, लोगों ने एक्सेप्ट किया है। अच्छा, देयर शुड बी नो अचारा, नहीं, ये खैर ये टर्मिनोलॉजीज़ नहीं। अगर आप डिसएग्री भी करती हैं तो आप फिर पॉलिटिकली टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करें कि नुकसानात हैं, मल्टीपल पार्टी के नुकसानात भी हैं, इसी तरह डुअल पार्टी के भी नुकसानात हैं, जो दो पार्टियां होती हैं उसके भी नुकसानात हैं, मल्टीपल पार्टीज़ के भी नुकसानात हैं, लेकिन जो रियल डेमोक्रेसी है वो मल्टीपल पार्टी है।
दो पार्टियाँ नहीं है। रियल डेमोक्रेसी जो है वो मल्टीपल पार्टी की, कोई भी शख्स जो है इलेक्शन, इवन आप आज़ादाना तौर पर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो नो अचारा पार्टीज़, ये टर्मिनोलॉजी मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा, बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप किसी पोस्ट में कर लें जो मैंने आप लोगों को पोस्ट दिया है। हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्व्स, थैंक यू सो मच।